Hello students, today we are going to discuss the comparison between electrostatic and gravitational force. Uh, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कंपैरिजन करेंगे. The electrostatic force is much greater than gravitational force. इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स होता है जो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. सो वी कैन राइट दैट द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड of the electrostatic force acting between the two charge particles is very large. जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. एज कंपेयर्ड to the gravitational force acting between them. Considered this is a proton and this is electron. Okay, this is proton and this is electron. Okay, the charge of proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and the charge of electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. If we talk about the mass, and the mass of proton is 1.67 into 10 to the power 27 kg. Okay, and the mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Okay, since we know that the electrostatic force will be work between the charges and the gravitational force will be work between their masses.
So first of all, we will find electrostatic force. Okay, let the distance between them is smaller. So this is electrostatic force Fe, that is electrostatic force Fe, 1 upon 4 pi epsilon naught. ठीक है, let's, this is q1 charge and this is q2 charge. Okay, so that is q1 by q2 by r square. So Fe is equal to 9 into 10 to the power 9, and q1 is proton, then charge of proton is 1.6 into 10 to the power minus 19. Similarly, q2 is electron, then 1.6 into 10 to the power 19, and distance is r square Newton. Okay, this is equation first. Okay, now we will find the gravitational force between them. So that is Fg by the formula G m1 m2 by r squares. So what you will get, the value of G is 6.67 10 to the power minus 11, and mass of proton is 1.6 into 10 to the power 10 to the power 27, and the mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 upon this is equation second. Now we divide Fe by Fg. So what will we get? We will get Fe upon Fg is equal to, so when we will divide both forces, then r square will be cancelled out. So what we will get? We will get 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 to the power minus 19 upon 6.67 into 10 to the power minus 11 into 1.6 into 10 to the power minus 27 and 9.1 into 10 to the power minus 31. After solving this, we will get 2.27 to 10 to the power 39, that is Fe by Fg. So the relation between Fe is equal to 2.27 into 10 to the power 39 into Fg. So by this equation we came to know that the value of electrostatic force is very large than the gravitational force. Okay, students, if you are new, subscribe my channel. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.
Hello students, today we are going to discuss electric field. What is electric field? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मतलब किसी चार्ज के चारों ओर अराउंड उसके वह रीजन, ठीक है, जब जिसमें हम कोई टेस्टिंग चार्ज ले जाएंगे, ठीक है, कोई टेस्टिंग चार्ज ले जाएंगे तो उस पे वो क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स महसूस करेगा, ठीक है। तो उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ठीक, इसके आसपास का एरिया ये देख, ओके। अब इसके आसपास हम कोई भी टेस्टिंग चार्ज ले जाएंगे, कोई टेस्टिंग चार्ज, क्यू नॉट क्या है, पर टेस्टिंग चार्ज है, इसको ले जाएंगे तो ये जो टेस्टिंग चार्ज होगा इस पर एक फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। तो वो रीज़न क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब वो करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँ, जिससे आपकी 2027 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रीजन around around an electric charge, an electric charge, okay, electric charge in which in which the electric effect can be experienced that is if an electric charge to charge is placed, it, मतलब इसको हमने, इस टेस्टिंग चार्ज है, इसको हमने प्लेस कर दिया इसमें, तो इस पर क्या होगा, एक अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स क्या करेगा, महसूस करेगा, ठीक है। इट एक्सपीरियंस आइदर या तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। is called
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नाउ वी डिस्कस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इट इज डिनोटेड, it is denoted by capital E. Okay, and now let's see definition. The intensity of electric field at any point is defined as the force acting on a unit positive charge placed at the at that point. ओके, नाउ मान लेते हैं सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ से। ठीक है, और जो चार्ज है वो टेस्टिंग चार्ज है, वो क्यू नॉट है। ठीक है, ठीक, लेट क्या लिखेंगे, लेट अ फोर्स बी एक्टिंग। जब हम इस टेस्टिंग चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम लोग मान लिया एफ। ठीक है, बी एक्टिंग ऑन positive test charge Q naught placed to point मतलब ये आपका कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके किसी पॉइंट पे हमने इस पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज को प्लेस कर दिया। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ है, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ इज इक्वल टू
क्या होगी, क्यू नॉट इंटू इंटेंसिटी। ठीक, सो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट एफ। ठीक, अगर हम यहाँ से यूनिट निकालें तो न्यूटन पर कूलम। that is intensity of the electric field। अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये होता है एम एल टी सी। ओके, and SI units is, this is SI unit। ओके, नेक्स्ट और अगर इसकी हम अनदर यूनिट देखें, इफ यू सी अनदर यूनिट, so another unit is kg meter okay। Now let's see electric field due to point charge, electric field due to point charge। Now we have to find electric field due to a point charge। ठीक है, कंसिडर एक कोई आपका पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये आपका कंसिडर्ड अ पॉइंट चार्ज q एट अ पॉइंट o। ठीक है, एक कंसिडर्ड हमने किया पॉइंट चार्ज, ठीक है, ठीक, ठीक है, जो कि पॉइंट ओ पे क्या है, सिचुएटेड है, किसमें, एक डायलेक्ट्रिक मीडियम पे, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। ठीक है, इसके आर डिस्टेंस पे, इसके यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक टेस्टिंग चार्ज रखा है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, निकालनी है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दैट इज Q1 एंड दैट इज Q2। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, the force, this is force along OP। ठीक है, so force would be F by the Coulomb's law formula क्या था, 1/4πε0 K Q1 Q2 by R square। so here is Q1 is Q and Q2 is Q0, so 1/Q1 Q and Q2 is Q0 by R square।
ओके। Okay, since we know that F is equal to Q naught into E, so put the value of F in this equation. So what? 1 upon 4 pi epsilon naught K Q naught by R square is equal to Q naught E. So Q naught is cancelled out, so E is equal to 1 upon 4 pi so naught Q by R square. Okay, Newton per Coulomb. Okay, if we represent this in vector form, so then that is for vacuum, for vacuum or air, K is 1, so is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon देखिए वन थिंग आप लोग जान लीजिए, अगर आपका टेस्टिंग चार्ज प्लस में है, ठीक, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो आपकी लाइंस क्या होंगी, ऐसे जाएंगी बाहर की ओर। ओके, और अगर आपका चार्ज निगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस जो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइन से बनती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये इनका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो ये सेंटर की ओर आएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन लाइंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, जब आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, ये आपकी बाहर की ओर जाएंगी, ठीक है, ठीक। और जब आपका माइनस होगा तो ये सेंटर मतलब जाएंगी, ठीक। मान सपोज डेट अगर दो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं Q1 Q2, ठीक, तो उनका डायरेक्शन ऐसे होगा, ये आपको याद रखना है।
रिपल्स करेंगे ना बच्चों, तो इनका डायरेक्शन ऐसे होगा, पी पॉइंट हो गया, ये ठीक है। और अगर आप एक आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक, और ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक, तो ऐसे होंगे। ओके, सो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नया टॉपिक हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक्स हैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ, ठीक है।